सो स्क्रीन आई गेस assume कि आपको नजर आ रही है। यस सर। अच्छा, सो असल में वो लास्ट टाइम आपको याद होगा वो मुझे अजीब सा लगा था कि कहाँ क्या इसने शुरू कर दिया। वो बेसिकली ये चैप्टर 2 चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर 4 है और उसके बाद अगला चैप्टर 5 है। तो इस चैप्टर 4 में कुछ चीजें उसने डिस्कस की है। बेसिकली देयर आर टू ways to solve the problem of overfitting। बल्कि ये स्टार्ट वाला हम स्किप करते हैं क्योंकि वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स। दिस इज नॉट, we did this already। So the problem which necessitates this discussion is yeah, no, not even this one। Selecting meaningful features, this is actually the main idea। So the central problem, if you remember, is overfitting, in other words high variance, and to mitigate that some of the strategies include collecting more data. Of course that will not always be possible, and you even saw in the ensemble methods that in some cases even collecting data will not help you if you have wrong assumptions. So another way of dealing with that, we already discussed, this is regularization, yeah, where you introduce some penalty, regression, L1 regularization, L2 regularization. So where you penalize complex models. But the other possibilities include going for a simple model with few parameters and reduce the dimensionality of the data। अच्छा, ये जो है ना, ये जो simpler model, ये भी हम कर चुके हैं कि you start with a simple model, ठीक है। इन तीनों में आप फीचर्स को नहीं छेड़ते, you do not actually discuss features। आप गिवन फीचर से ही स्टार्ट करते हैं। आप सारी चीजें अपने मॉडलिंग एंड पे करते हैं, मोर डेटा, और when you say more data, you don't mean more features, actually more data points, more examples। और यहाँ पे सिंपलर मॉडल का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर, यू आर चेंजिंग द ट्री डेप्थ, और वो जो हाइपर पैरामीटर्स है ना वो यहाँ पे चेंज करते हैं। डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा रिडक्शन का मतलब ये है कि इट कैन हैव टू it can come in two forms। You either select features carefully, so even if you have many features, आपके पास डेटा है उसमें x1 भी है, x2 भी है, and so on up to x10, for example आपके पास 10 features है, so it may not be relevant, I mean not all of the features may be relevant, okay। एक सेकंड यार, मेरे बच्चों को so instead of using all the features, you have to select features carefully, those that are relevant. So either using your domain knowledge or talking to an expert. If you can't do that, there are other methods. And the other, so it is called feature selection. Feature selection. You choose from the available features. You're not creating new features. And the second approach is called feature extraction. In feature extraction, you combine the existing features and you create new features. Yeah? That may have totally different meaning, or maybe they have no meaning at all. So that is how you reduce dimensionality। So this chapter is about feature selection। ये जो feature extraction है ये अगले चैप्टर में है। मेरे असल में मेरे जहन में वो PCA और वो चीजें थी ना, SVD, वो feature extraction था, तो मैं उस टाइम पे मैं हैरान हुई कि क्या हो गया, वो feature selection की बात कर रहा है बेसिकली स्टार्ट में।
So this L1 and L2 regularization are for feature selection. कैसे? I think you are aware of this L1. So ये formula मैं repeat नहीं करूँगा. You already know what the meaning of these mathematical formulas. So let's focus on this plot. यहाँ से आपको clear हो जाएगा कि, and just to keep things simple to visualize, ये आपके पास weights हैं. Let's say आपके model में दो weights हैं, W1, W2, ठीक है? और आप का मॉडल जो है ना वो किस फॉर्म में होगा? इफ यू गो फॉर रिग्रेशन मॉडल, ये रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, ऑल्दो दिस डिस्कशन इज वैलिड एनीवे. So you think of W1 x1 is one feature, W2 x2 is the second feature. Maybe this is your cost function, and you minimize this cost function, ठीक है? And let's say this is the point where you get the minimum. So if you want to minimize the cost, you have to go there. तो अगर आपको ये मिनिमम चाहिए तो कैन यू इमेजिन कि उसके लिए आपको W1 की कोई वैल्यू चाहिए और आपको W2 की कोई वैल्यू चाहिए. दिस इज जस्ट ए visualization, and this value may be a large value and this may be a large value. Large in the sense that if you pick this value of W1, if you pick this value of W2, your model will have both the features x1 and x2. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने x1 और x2 में से किसी एक को remove किया है. You have basically selected both features. You have selected both features because the weights are non-zero. सर रिकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है. ठीक है, यस सर ठीक. हाँ वो मैंने की है क्योंकि मैंने एक सेकंड कंफर्म करता हूँ उसको. हाँ बिल्कुल स्टार्ट है. ओके so though this illustration is very simple, you just have two features, but you can generalize this discussion. Yeah, if you have many features, you will imagine a plot like this in n dimensions. और अगर हर एक फीचर के साथ एक कोएफिशिएंट आ रहा है, so for example to go to that minimum, if you rely on non-zero weights, yeah, associated with all features, you cannot say that you are selecting features. You are actually selecting all the features. ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं? यस सर. अच्छा, अब हाउ डज रेगुलराइजेशन? एक तरीका तो यह है कि आपको पता है कि x1 और x2 में से कौन सा रेलेवेंट है. जो रेलेवेंट नहीं आपको निकाल दे, वो अगर आप कर सकते हैं फिर तो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है. So let's assume that you don't have the domain knowledge, and even if you have the domain knowledge, it is not straightforward to remove certain features. So you rely on regularization. Yeah, regularization means that you put some penalty on W1 and W2 कि ये यार सिर्फ इसको वेट नहीं देना, मिनिमाइजेशन को मैंने इसको लिमिट भी रखना है. तो you penalize, you include a term, and this is a pictorial representation of that. तो ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, this is the penalty imposed on W1 and W2. Why do you think is this the penalty? देखो ना वो जो प्लॉट्स है ना. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि ये जो कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं, एलिप्सेस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेट्स, हाँ ये एक वेट्स तो है, लेकिन बेसिकली ये जो अगर आप इस एक सर्कल की बात करें, लेट्स गो अप, इनमें से मैं लेट्स सपोज इस की बात कर लो, तो यहाँ पे पूरे एलिप्स में W1 W2 चेंज हो रहे हैं, W, लेकिन ये कॉस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. दीज आर कॉल्ड कंटूर प्लॉट्स. कंटूर, दीज आर कॉल्ड कंटूर्स. ये पहले भी मैंने एक दफा जिक्र किया था. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में या आई डोंट नो सर्किट्स में इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी, याद आ रहा है? वहां पे इसको क्या कहते थे EMT में? कॉस्ट कैसे नहीं चेंज करी? हाँ, कॉस्ट कैसे नहीं चेंज होगी? क्योंकि इस प्लॉट में दो ही एक्सेस है ना, W1 W2. कॉस्ट का तो एक्सेस है नहीं, थर्ड एक्सेस.
तो आप कॉस्ट को कैसे रिप्रेजेंट लेकिन करेंगे? W1 W2 से कॉस्ट बनेगा ना, रिलेट नहीं करती। नहीं W1 और W2 से कॉस्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट की वैल्यू होगी वो आप इसमें थर्ड z एक्सिस तो नहीं है ना कि आप उसको वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इस तरह के यस प्लॉट्स में आप क्या करते हैं, यू हैव कंटूर्स दैट आर कर्व्स अलोंग व्हिच द कॉस्ट डजंट चेंज। सो इस पे कॉस्ट की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, लेट्स से इस कॉस्ट इज इक्वल टू 10 है ये, एंड लेट्स से दिस इज कॉस्ट इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। तो ये कॉस्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू कम होगी, इससे कम नहीं हो सकती। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपको याद आ जाए कि ईएमटी में इसको क्या कहते थे, फिर आपको समझ आ जाएगी। वहां पे इसको इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस कहते थे, याद है आपको? यस सर। इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का मतलब ये है कि वहां पे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। और ये आपके ग्रेविटेशनल फील्ड में भी है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो जमीन है, यस सर। जमीन क्या है, जमीन पे आप कहीं पे भी जाएं ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही ना, लेकिन बाकी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। सो इसी तरह मतलब अच्छा, यहाँ से आपको याद है, मैं पहले इसलिए मुझे याद है, ये मैंने डिस्कस किया था कि अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपने मूव करना है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो किस डायरेक्शन में कॉस्ट चेंज होने का रेट ज्यादा होगा इसमें? जो मिनिमम कॉस्ट की तरफ ये, जाती है। ये वो ग्रेडियंट है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट। यस सर। ये तो ये मैं ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट में मैंने मुझे याद पड़ता है कि मैंने किया था ये, ठीक है। ग्रेडियंट बूस्टिंग में किया था। हाँ बिल्कुल। So here you basically, that plot has not changed. This point still represents the minimum cost, which means that if you disregard the penalty on W, you will still try to seek that point. But seeking that point will require you to go for large values of W, W1 and W2, and which means that you have to go for all the features, both features. ये मेटाफोरिक है ना, यू कैन थिंक अबाउट अदर सिनेरियोज एज वेल। सो अब ये सर्कल, अब मुझे बताओ ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड व्हाई इज इट अ पेनल्टी फॉर डब्ल्यू? यहां से आपको ये हिंट, इसलिए क्योंकि यहां से आपको हिंट लिमिट मिलना कर चाहिए, रहा है। यहां से हिंट मिलना चाहिए। ये जो नॉर्म है ना, ये डब्ल्यू, ये टू डायमेंशन में क्या होगा, इट विल बी W1 स्क्वायर्ड प्लस W2 and if you want basically to multiply this by some constant and then you add it with the cost, then you add it with your cost and this is your new cost। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ इसको नहीं मिनिमाइज करना, इसको भी मिनिमाइज करना है। तो अब जब ये दोनों को मिनिमाइज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कॉस्ट तो उधर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने अब इसको भी मिनिमाइज करना है। तो अब आपके पास ये सर्कल आ गया कि मिनिमाइज करते वक्त आप इस सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे। यू वांट दिस क्वांटिटी, yeah, this W1 squared plus W2 squared to be less than some value, some fixed value, और वो वैल्यू क्या है, वो लेमडा से आप डिराइव करेंगे। सो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स अ बाउंड ऑन द वेट्स कि इससे बाहर आप ना जाएं। तो अब इसने ये पॉइंट क्यों चूज किया है, यहाँ पे कोई और पॉइंट इसने क्यों चूज नहीं किया, मुझे बताएं। क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू है प्लस क्योंकि आपको ये है कि इससे चूंकि आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप मैक्सिमम आप इस सर्कल पे कहीं पे भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर आते हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है ना, वो वाली कॉस्ट बढ़ जाती है। सो यू आर एज क्लोज टू दैट मिनिमम एज पॉसिबल। ये आप इसलिए बैरियर नहीं तोड़ सकते कि आपने पेनलाइज किया हुआ है डब्ल्यू को, समझ आ गई? यस फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी सर्कल में कोई और पॉइंट चूज करते हैं, ये वाला, तो वो उससे दूर हो जाएगा ना। सो यू आर क्लोजेस्ट, दिस इज व्हाट द ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट एल्गोरिथम। बढ़ जाएगी। हाँ, कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो पॉइंट बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोट करें, आप मुझे सोच के बताएं कि इसमें ये जो शेप है सर्कल, ये सर्कुलर शेप है ना इसका,
हमने जो चूंकि L2 नॉर्म यूज किया हुआ है ना, L2 नॉर्म की वजह से सर्कुलर शेप आ रहा है, क्योंकि L2 नॉर्म गिव्स मी दिस फंक्शन, और जब मैं इस फंक्शन पे लिमिट Yes. लगाता हूं तो ये सर्कुलर शेप बनता है, या स्फेरिकल, या भी कोई भी शेप एन डायमेंशन में। इस सर्कुलर शेप का आपके ख्याल में क्या नुकसान है? सोचे। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट फंक्शन, ये इस सर्कल में कहीं पे भी आ सकता है, और फॉर एग्जांपल इस जगह पे ये आ गया, तो इस जगह पे आपको W1 की वैल्यू भी नॉन जीरो मिली है और W2 की वैल्यू भी, तो आप फिर भी इनमें से किसी एक फीचर को निकालने के चांसेस फिर भी कम है। ये कब निकलेगा? अगर ये पॉइंट कहां होता, इनमें से एक फीचर कब निकलेगा? अगर ये पॉइंट x एक्सिस या y एक्सिस या पे। इधर होता या इधर होता, यस। और इधर इधर चूंकि सर्कल है, तो सर्कल में ये चांस बहुत कम है कि आपको उधर मिनिमम मिलेगा, वो लकी सिनेरियो ही होगा। समझ आ गई? दैट इज द यस। प्रॉब्लम विद L2 नॉर्म। जो आपका, इसको कौन सी रिग्रेशन कहते हैं? रिज, आपको नाम याद होगा, रिज रिग्रेशन। मैथमेटिक्स भरी पड़ी है, लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये एक प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, फीचर सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम है। You cannot go for a model that uses a small number of features if you rely on L2 norm, क्योंकि ये typically experience से देखा गया है। Now if I replace this norm with one norm में क्या करना पड़ेगा मुझे? Let's suppose मैं इसको यहाँ पे 2 की जगह मैं क्या करता हूँ, 1 norm। 2, इसका फॉर्मूला किसको याद है कि 2 डायमेंशन में क्या होगा? It will be the sum of रेट्स। the absolute values, sum of absolute values। तो वो शेप ये बनेगी। सोच के बताएं कि शेप क्यों ठीक है? मैनहट्टन शेप। हाँ, मैनहट्टन है, लेकिन ये काइट वाला शेप क्यों बनता है? फॉर एग्जांपल इस लाइन को एक्सप्लेन करें। इस लाइन को आपको याद है, इस लाइन का क्या क्या आपको इंटरमीडिएट इक्वेशन से याद होगा कि स्ट्रेट लाइन, लेट्स से यहाँ पे यहाँ पे ए इंटरसेक्ट है और यहाँ पे इंटरसेक्ट क्या है, इधर बी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? एक्स ओवर ए, बी माइनस नो, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू, ये होता था ना, यस। एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये लाइन फिर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में? कौन सी लाइन? ये x यहां पे क्या बनेगा? मैंने इसको लिंक भी तो कहाँ पर करना है मुझे ना। दिखा? यहाँ पे ये W आपका, ये कौन सा एक्सिस है? W1 है ना, और ये कौन सा है? यस। तो ये x की W2 जगह क्या बन जाएगा? W1 W1 और W2। W2 लेकिन ये Y। एजम्पशन आप ये कर रहे हैं कि W1 और W2 दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आप। यस। तो उसमें फिर आप ये भी कर सकते हैं, बेसिकली इट्स द सेम वेदर यू राइट इट दिस वे और दैट वे। ठीक है, और अब अगर मैं इसको इन दोनों को, फॉर एग्जांपल फॉर सिंपलिसिटी, मैं इसको भी 1 करूं और इसको भी 1 करूं, हालांकि ये बाद में चेंज हो सकता है, इसको मैं 1 कर दूं और इसको भी 1 कर दूं, तो ये बेसिकली, ये आप ना भी करें तो ये इट विल बी सम, इट विल बी इक्वल टू 1 और सम कांस्टेंट। अब आपको समझ आ रही है कि ये लाइन क्यों L1 नॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आपको क्या मिल गया? L1 नॉर्म। समझ आ गया? यस। और यही अब एजम्पशन आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो वहां पे आपको ये मिलेगा फिर, क्योंकि आप में से किसी एक को एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस को प्लस करना पड़ेगा। सो ऑल दीज 4 लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन
that the first norm, the one norm must be equal to some fixed value. और चूंकि आपने बेसिकली आपका कंडीशन तो लेस देन और इक्वल टू समथिंग है, लेस देन, तो अब ये जो रीजन है ये वाला, दिस रिप्लेसेस योर सर्कुलर रीजन. तो आपने इस सर्कुलर रीजन को रिप्लेस किया है बाय दिस काइट. अब वही काम आपको मिल रहा है, लेकिन इट इज मोर लाइकली दैट, क्योंकि देखो ना, इसमें इस इन 4 लाइनों में कहीं पे भी हो आपका ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, मिनिमाइज वाली, सर्कल की कंडीशन खत्म हो गई, तो आपको वही जो मिनिमम है वो इधर भी मिल सकता है. इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे आपको मिल गया ना. फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्कल होता, देखो ना, यहाँ पे आपको मिल नहीं सकता ना ये, तो सर्कल पे ये मिनिमम हमें किधर मिलना था, इधर मिलना था. यहाँ पे आपको इधर मिलना है मिनिमम. ऑफ कोर्स ये इससे कम है, मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन वाइज ये बेहतर नहीं है, लेकिन आपको एक फीचर आपका निकल गया ना. कौन सा फीचर निकल गया? W1 निकल गया ना. W1 की वैल्यू 0 हो गई. W1 की वैल्यू, so you have reduced the two features to a single feature. Your model will only have W1, sorry X1. अब समझ आ गई बात? W1 X1 या नहीं, उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी. तो W1 से निकल गया. हाँ निकल गया. W2 X2, सॉरी, W2 X2. So this is how L1 regularization helps you in going, इसको कहते हैं sparse model. Sparse model. Sparse का मतलब यह है कि majority of the coefficients will be 0, only a few coefficients will be non-zero. So you indirectly get, और ये इसकी मैथमेटिक्स में ना जाए, इसने कहा हुआ है कि आप इस बुक को पढ़ के इसको डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ये इट्स टू एडवांस्ड फॉर यू गाइस एट दिस पॉइंट. टाइम नहीं है असल में, वरना ये पॉसिबल है समझना इसको. एंड दिस इज हाउ यू डू इट इन scikit-learn. वहाँ पे आपने जो पैरामीटर नोट करना है वो ये है कि, for example, if you use logistic regression or any other classifier, so penalty is the name of the parameter which by default is set to L2 and you have to set it to L1. ये आप याद रखें. If you set this to L1, so you will get that. इसको फिर क्या कहेंगे, इस रिग्रेशन को पहले को रिज रिग्रेशन कहते थे, और इसको हम कहेंगे लासो रिग्रेशन. और मेरे ख्याल में इसने बाकी डिटेल्स बताई हैं कि अनफॉर्चुनेटली लासो रिग्रेशन में सारे सॉल्वर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको सॉल्वर चेंज करना पड़ेगा. ये जो डिफॉल्ट सॉल्वर है, यू हैव टू चेंज दिस सॉल्वर. ये आपको खुद ही वो एरर दे देगा, तो यू हैव टू लुक फॉर अनदर सॉल्वर. ये इसलिए भी जरूरी है कि जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, ये वाला, दिस इज अ मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम. ये वाला जो प्रॉब्लम था, ये 2 नॉर्म वाला, क्योंकि उसकी मैथ आसान है ना. आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि these functions like the parabola is a much nicer function compared to this absolute value. So उसकी मैथ आसान है, तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम भी ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है. L1 regularization के एल्गोरिथम्स कम हैं compared to that. ये तो बाकी उसकी डिटेल्स हैं scikit-learning के, लेकिन अब मेरा हमें आपको आइडिया हो गया. ये इसने एक पता नहीं कौन सा वाइन एग्जाम्पल है इसका, जिसमें वाइन में आप डिफरेंट कंपोनेंट्स डालते हैं और उससे उसकी वो टेस्ट, एक डिजायर्ड टेस्ट आपको अचीव करना होता है, एंड सो ऑन. तो व्हाट कैन यू सी हियर. और ये रिमेंबर, ये जो वहाँ पे लेमडा हमने यूज किया था ना, इस केस में ये लेमडा बेसिकली 1/c है, ठीक है ना, बिकॉज वी आर यूजिंग SVM as our framework. So c is a parameter whose reciprocal gives us the penalty. तो इसका मतलब कि हमें c स्मॉल चाहिए अगर हमें लैम्डा लार्ज चाहिए होगा. अब आप बता सकते हैं कि ये प्लॉट क्या बता रहा है, y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है.
weight coefficients. वेटिंग कोएफिशिएंट्स है और ये डिफरेंट कलर्स वाले हैं, हर कलर का कोएफिशिएंट है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका W1 हो जाएगा, इसका ये W2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो नाउ व्हाट डू यू सी इन दिस रीजन? C की वैल्यू लार्ज है, ठीक है। When C is Yes. large, lambda is small. Lambda is small. When lambda is small, you are not penalizing. You are not penalizing, which means that you are allowing to use all the features. ठीक है, आप सिर्फ वो कॉस्ट फंक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारे जो आपके वेट्स हैं वो सारे नॉन जीरो हो गए। समझ आ रही? देखो ना, ये नॉन जीरो वेट्स आ गए। लैम्डा तो वेट से मल्टीप्लाई नहीं होता। नहीं, वेट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो वेट का जो नॉर्म है उससे मल्टीप्लाई होता है। यस सर, तो ये देखे ना, जैसे वेट्स को गिनना नहीं चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने, यहाँ देते हैं। ये है जब आप कॉस्ट फंक्शन को मैंने यहाँ मॉडिफाई किया था ना, ये था कि आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन है, लेट्स से उसको हम जे कहते हैं, ठीक है। जे इज योर कॉस्ट फंक्शन, और उसको आप उसके साथ आप लेमडा टाइम्स आप नॉर्म मल्टीप्लाई करते हैं W का, L1 या L2। लेट्स से हम L1 नॉर्म यूज करते हैं। तो इस लेमडा इज इक्वल टू, अगर ये लेमडा की वैल्यू स्मॉल है तो इसका क्या मतलब है कि आप ऑलमोस्ट ये ऐड कर ही नहीं रहे हैं। स्मॉल का मतलब ये है, सो यू आर गिविंग ऑल द इंपॉर्टेंस टू द ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन, तो वो W को तो लिफ्ट नहीं कराएगा वो। यस सर, समझ आ गई? एंड if lambda is large, then you are giving more importance to the weights। आप चाह रहे हैं कि weights भी कम हो जाएं, मुझे सिर्फ ये मिनिमम नहीं चाहिए, मुझे ये, लेकिन वहां पे लेमडा की उल्टा क्यों दिख रहा है? वहां पे C है ना, C इज 1 ओवर लेमडा। ये हमने पहले भी, ये चैप्टर 2 में भी था, आपको याद होगा। हम ये बेसिकली ये चूंकि साइकिट लर्निंग, ये साइकिट लर्निंग का इशू है। साइकिट लर्निंग में आप C पैरामीटर यूज करते हैं जो कि SVM का कोई पैरामीटर है, और वो बनता ऐसे है कि वो इनवर्स है लेमडा का, लिखा हुआ है इधर, ये उधर भी था ये। अच्छा। So a large value of C means a small value of lambda। तो अगर आपको लेमडा लार्ज चाहिए तो आपको C स्मॉल चाहिए होगा। Now when you, लेकिन अगर C की वैल्यू लार्ज हो रही है तो वेट्स की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा स्मॉल है। लेमडा स्मॉल है तो आप वेट्स को पेनलाइज नहीं कर रहे हैं ना। यस नहीं सर, देखो ना, ये इधर आ जाए, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, दोबारा इधर ही लिख देता हूँ। बेसिकली आपका एक होता है कॉस्ट फंक्शन, ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो आप सिर्फ कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो फिर आपको सारे वेट्स मिलेंगे ना। अब आप उसके साथ लेमडा टाइम्स कॉस्ट फंक्शन का नहीं, वेट्स का नॉर्म भी आप लगा लेते हैं। सो अब ये लेमडा की वैल्यू अगर स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये ऐड कर ही नहीं रहे ना। सो आप फिर भी इंपॉर्टेंस कॉस्ट को ही दे रहे हैं, क्योंकि जीरो और स्मॉल टाइम्स, इसका मतलब ये है कि अगर ये वेट लार्ज भी हो जाए तो आप, चूंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको स्मॉल से, तो यू आर नॉट गिविंग देम इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस कम है इसकी। टू गिव इंपॉर्टेंस टू दिस, यू वुड लाइक टू इंक्रीज दिस, और फिर आप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को कहेगी कि चूंकि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको भी स्मॉल करो। अब वो स्मॉल, ये आपने लार्ज किया है तो वो इसको स्मॉल करेगा ना। यस, ठीक है, अब समझ आ रही है? यस। सो अब आप मुझे बताएं कि when you decrease the value of C to smaller and smaller values, that gives you a larger value for lambda, and now you are penalizing weights। तो अब देखो ना कि majority weights क्या हो गए, 0 हो गए, सिवाय एक वेट के। yes। ठीक है, so this is actually an illustration, और ये सिमुलेशन से इसने किया हुआ है कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और ये L1 की वजह से ही पॉसिबल है, L2 में इस तरह नहीं होता।
Okay, so another method for feature selection is called the sequential feature selection, and this looks very much like we did for decision trees. आपको याद है decision tree में हम एक काम करते थे कि हम we use different impurity levels, impurity measures, sorry, impurity measures. याद है आपको नाम? एक जिनी इंडेक्स था, Yes, sir. एक एंट्रोपी थी, एंड सो ऑन, या दूसरा एरर था, क्लासिफिकेशन एरर. सो और वहां पे भी ये था कि आप किस फीचर के ऊपर क्वेरी स्टार्ट करें तो आपको बेस्ट जो है ना वो उसकी इम्प्योरिटी मेजर ज़्यादा होता है, तो वो एक इफेक्टिव क्वेश्चन बनता है और वो आपको जल्दी जो है ना वो क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है. ए सिमिलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हेयर इन फीचर सिलेक्शन, कि आप क्या करें कि आप सारे फीचर्स के साथ उनकी इम्प्योरिटी मेजर्स नोट करें और फिर आप देखिए कि उनमें से कौन सा फीचर अगर आप निकाल लें, लेट्स से उनमें से एक फीचर आप एक एक फीचर को निकालते जाए. लेट्स से आपके पास 10 फीचर्स हैं, x1 अप टू x10, and you eliminate this and then you see what happened to the overall impurity. फिर आप x2 को निकाल दें, फिर देखिए impurity पे क्या चेंज हुआ है. सो जो impurity पे इम्पैक्ट जिसका ऐसा हो कि बेसिकली तो आपका परफॉर्मेंस मेजर होता है ना, एक कॉस्ट फंक्शन होगा परफॉर्मेंस मेजर. Performance measure is the opposite of cost function. If you want to minimize the cost function, you have to maximize the performance measure. ठीक है, तो you can eliminate out of these 10 features the feature which has minimum impact on this performance measure. क्योंकि आपने सबको इंक्लूड किया, आपका एक परफॉर्मेंस मेजर होगा एक्यूरेसी वाला. आप x1 निकालते हैं, ये कम हुआ, x2 निकालते हैं, ये कम, जिसमें सबसे कम इम्पैक्ट हो आप वो निकाल लें, क्योंकि उससे आपका एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ता. दिस इज अ कॉमन सेंस सिनेरियो. ये बात समझ आ रही है? एक तरीके से हम वो निकालें जिसकी सबसे कम वेरिएंस. बिल्कुल. वेरिएंस आई डोंट नो कि इसका ताल्लुक वेरिएंस इस स्टेज पे बनता है कि नहीं. इसने इसको इम्प्योरिटी से ही रिलेट किया है, क्योंकि इम्प्योरिटी इंफॉर्मेशन कंटेंट है उसका, जितना उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट ज्यादा होगा उतना उसको निकालने में जो है ना क्योंकि वो एक रेलेवेंट फीचर है, जब आप उस रेलेवेंट फीचर को निकालेंगे तो आपके परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंज आएगा. वो ड्रास्टिक चेंज ठीक नहीं है. फिर Yes. आप बेसिकली इररिलेवेंट फीचर निकालना चाहते हैं ना. Yes, sir. जिसकी इम्प्योरिटी जिसकी हाँ, तो इम्प्योरिटी बेसिकली इररिलेवेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना. मेरे ख्याल में यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कहीं पे, देखिए. So the motivation behind feature selection is to automatically select a subset of features that are most relevant to the problem. देखो ना, आप irrelevant को निकाल रहे हैं. और इसने कोड इंप्लीमेंट किया हुआ है, उस कोड से ही क्लियर हो जाता है आपको कि अगर आप ये लाइन पढ़ लेना, the feature to be removed at each stage can simply be defined as the feature that maximizes this criteria. क्योंकि जो accuracy है वो फिर भी आपको maximum मिलनी चाहिए. Or in other words, at each stage we eliminate the feature that causes the least performance loss after removal. ये असल चीज है, it causes the least performance loss. तो आपको इवन अगर वो इम्प्योरिटी वाली बात याद नहीं भी है, आप परफॉर्मेंस तो मेजर कर सकते हैं ना. ये बेसिकली जो एल्गोरिथम है साइकिट का, ये हर फीचर के लिए परफॉर्मेंस को रिकैलकुलेट करता है. तो ये वो वाला डिसीजन ट्री वाला तरीका नहीं है, वो सिर्फ मैंने स्टार्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए उसका जिक्र किया है. आप एक्चुअली परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं और स्टेबल बनाते हैं, और जिसमें परफॉर्मेंस पे कम इम्पैक्ट पड़ता हो वो आप निकालते हैं फिर. सो argmax का मतलब ये है कि यू स्टिल वांट द नेक्स्ट बेस्ट एक्यूरेसी. और ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, ये कोड अगर आप देख लें तो इस कोड में इसने मेरे ख्याल में, अगर हम ये देख लें कि इसमें क्या करता है, ये
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, शेप हो गया, ये सारा, ये असल चीज आपने ये नोट करनी है कि इट इट calculates the score, which represents the accuracy, and this is that while loop while the number of dimension is larger than some threshold. आपको threshold देना पड़ेगा ना कि आपको टोटल कितने फीचर्स चाहिए. लेट्स से आप फीचर्स आपके पास 10 है और आपको 5 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा. सो स्कोर आप इनिशियलाइज करें और फिर ये देखें कि आप स्कोर देखो ना, आप एक डायमेंशन निकालते हैं और दोबारा स्कोर देखते हैं और उन सब स्कोर में देखते हैं कि आर्ग मैक्स कौन सा है. इसका मतलब ये है कि यू आर एलिमिनेटिंग द फीचर दैट causes as little impact as possible on the performance. ये इसने यहाँ पे मेरे ख्याल में ये ग्राफ को अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपको समझ आ जाएगी. इस ग्राफ को अगर आपने समझ लिया तो आपको ये तरीका समझ आ जाएगा. ये जो इसको क्या कहते हैं, SBS, सीक्वेंशियल बैकवर्ड सिलेक्शन. तो y एक्सिस पे एक्यूरेसी है और x एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स. सो लेट्स से आप यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से आप स्टार्ट करते हैं. कैन यू इमेजिन दैट रिमूविंग वन फीचर हैज इंप्रूव्ड द परफॉर्मेंस. कभी कभी ये भी होता है. ये कब होगा आपके ख्याल में, ये होना तो नहीं चाहिए ना, जब आपके पास डाटा पॉइंट्स कम हो और फीचर ज्यादा हो. क्योंकि डाटा कम है ना, तो जब डाटा कम है और आपके पास वेरिएबल ज्यादा है तो आप तो हवा में ही फायरिंग करेंगे ना. लिनियर अलजेब्रा याद करें ना, उसमें लिनियर अलजेब्रा में आपको इक्वेशंस जो है ना वो कम दे दूं और नहीं इक्वेशन में ज्यादा दे दूं और डाटा कम दे दूं, तो आप वो कैसे फिट करेंगे उधर. तो अब यहां पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता. इसका क्या मतलब है कि इन सब को आप निकाल सकते हैं. इसको भी निकाल लें फर्क नहीं पड़ता, इसको भी निकाल दे फर्क नहीं पड़ता, इसको भी निकाल दे फर्क नहीं पड़ता. तो आप आराम से फीचर नंबर ऑफ फीचर 7 तक ला सकते हैं. समझ आ गई. yes, और इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो गई थोड़ी देर. उसके बाद फिर तो आपको यहाँ रुकना नहीं है. आप ये क्या आप देख ले कि यार देखो ना ये तो गिर गया तो नहीं, अब नहीं, यू कंटिन्यू एंड यू फाइंड आउट दैट फॉर 3 फीचर्स यू रीगेन दैट ओरिजिनल परफॉर्मेंस. दिस इज अमेजिंग. ये वही परफॉर्मेंस है जो उधर आपको मिल रही थी. तो अगर आप ये ट्राई ना करते तो आप तो गिव अप करते ना फिर. समझ आ रही है. yes, अब 3 के बाद फिर हालात खराब हो जाते हैं 2 और 1 पे. इसका मतलब है कि अब आप अंडर फिटिंग की तरह, ये अंडर फिटिंग वाला सिनेरियो है कि दैट्स टू मच सिंप्लीफिकेशन. या सो कीप इट सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर. ये वो नॉट सिंपलर है कि अगर आप फीचर्स ही निकाल रहे हैं ना तो कुछ तो आप छोड़े फिर. सो दिस इज एक्चुअली एंड दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, क्योंकि आप हर एक स्टेज पे एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे हैं. मतलब ये ऐसे ही है ना, मैं आपको एग्जांपल दे दूं. इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स अ कंसेप्चुअली वेरी सिंपल थिंग बिकॉज ऑल द लोड इज गिवन टू कंप्यूटेशन. आप को मैं एक ट्रांसफर फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है. और ट्रांसफर फंक्शन लेट्स से 10th ऑर्डर है, तो s to 10th समथिंग टाइम्स s to 9th एंड सो ऑन. और ये न्यूमरेटर में भी है. और यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास पोल्स है ना, s माइनस पोल 1, s माइनस पोल 2 एंड s माइनस पोल 10. और अब मैं आपको कहता हूँ कि यार इन पोल्स में से मुझे पोल्स निकालते जाओ और ओवरऑल एक्यूरेसी इतनी इससे कम नहीं होनी चाहिए. तो आप एक एक पोल निकालेंगे और जो सिस्टम का स्टेप रिस्पांस है ना वो आप चेक करेंगे कि वो इसके निकालने के बाद कितना चेंज हुआ है. अगर वो चेंज एक्सेप्टेबल है, विद इन लिमिट्स है, तो आप उसको निकाल लें, फिर अगले को निकाल लें. फिर अब बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी और द स्टेप रिस्पांस, so you don't require any theory, it's just simulations. तो ये प्योर सिमुलेशन बेस्ड सिनेरियो है. समझ आ गई ये बात.
You don't need any fancy high actually complexity results. Yeah, Yes, sir. मतलब जिस तरह वो एंट्रोपी और वो शेनन और वो गिनी, you don't need anything like that. It's just a simple process. अच्छा, ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ये वाला SBS वाला, लेकिन इस साइकिट लर्निंग लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो इसने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कोड इसने दिया हुआ है. On the other hand, the algorithm, the feature selection algorithm available in scikit-learning is called RBE, recursive backward elimination algorithm. So if you don't have time and you don't want to write that code yourself, you can use that algorithm. इसका detail दिया हुआ है इधर. The idea is very much the same. ठीक है ना? Exactly वो नहीं है, लेकिन it's basically आप खुद सोचिए, अगर basically it has something to do with tree based methods. It's actually based on tree based. वो जो हम impurity की बात कर रहे हैं ना, ये असल चीज ये है, ये उस आइडिया को यूज कर रहा है. The last feature selection method in this chapter is called the random forest. Random forest आपको याद होगा, आपने यूज भी किया होगा लैब्स में. रैंडम फॉरेस्ट सेकंड लर्निंग में जो मॉड्यूल है, उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिकॉज इट यूजेस ऑल द पॉसिबल फीचर्स इन ऑल द ट्रीज. आपको रैंडम फॉरेस्ट का थोड़ा सा आइडिया तो याद होगा ना कि ये सारे ट्रीज बनाता है, बहुत सारे ट्रीज बनाता है, बल्कि ये फुल ट्री बनाएगा और फुल ट्री में से ये नोड्स निकालता जाएगा. अगर परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट उसका कम है तो निकालता जाएगा, फिर एंड पे आपको ये. कैन यू रिकॉल दैट? Yes, sir. एक हद तक. Actually, the point here is not to recall everything, but because you have a full tree, so it automatically saves a number which represents the importance of every feature. तो आपके पास अगर 100 फीचर्स है ना, तो ये हर फीचर के लिए एक नंबर रिकॉर्ड करेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और ये हर स्टेज पे होगा. और ये आपने अगर इसको एक्सेस करना है वो ऑब्जेक्ट से, तो उसका नाम आप नोट कर ले, उसका नाम क्या है उस फीचर का, इंपॉर्टेंस का. इट्स कॉल्ड फीचर अंडरस्कोर इंपॉर्टेंस, फीचर स्कोर. ये बहुत जरूरी है. which means that if you have this random एक दफा फिर से बता दें, समझ नहीं. फीचर इंपॉर्टेंस असल में random forest algorithm, it tries many different scenarios and it will actually use a large number of trees, and then it will try to eliminate certain nodes based on their importance or impurity or whatever you call. तो उस रिकॉर्ड में ये हर फीचर का भी देखता है ना, क्योंकि वो जो नोड्स है ना, वो नोड्स क्या हैं, वो फीचर से रिलेटेड है ना. तो हर फीचर जो आपके पास लेट्स से x10 फीचर्स हैं, हर फीचर का इंपॉर्टेंस है कि ये फीचर, इस फीचर को अगर मैं निकाल दूं इस पूरे ट्री में से, तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है. वो उसी पिछले उससे रिलेटेड है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्यूरेसी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है. इट हैज सम मेजर, मतलब जिस तरह वो जीनी इंडेक्स था और वो था ना, उसी तरह का एक ये नंबर होता है. मैंने इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, SVD में मैंने आपको बताया था, ये सिंगुलर वैल्यूज जो हैं, that they tell you how important a particular feature is. तो यहाँ पे भी feature importance एक quantity होती है. If you want to dig deep, you have to understand all the details of the random forest. ठीक है? Yes, sir. But if you just want to use this algorithm, you can access that importance value. Actually, ये इसने यहाँ पे दिया हुआ है, वो जो importance feature है ना, ये मैं शुरू में इसका जिक्र कर चुका हूँ, ये वही averaged impurity है, decreased from all decision trees in the forest.
without making any assumption वो भी about it. वही एवरेज इम्प्योरिटी है, बस रैंडम 3 के फैशन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आपको बता देता है कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू इट्स एलिमिनेशन, क्योंकि आप जब उसको एलिमिनेट करेंगे तो आपको पहले पता होगा कि इसको एलिमिनेशन से वो इम्प्योरिटी कितनी चेंज होगी। तो ये नहीं मुझे समझ आ रही, ये वैल्यू आपको बता देती कि फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ये वैल्यू बताएगी कैसे? कोई रेफरेंस होगा तो नहीं, पता ये चले। इम्प्योरिटी, ये असल में कहने का इससे फर्क ये है ना, जो अभी हमने पहले ऊपर किया है पिछले स्लाइड में, उसमें हमने हर स्टेज पे एक्यूरेसी खुद कैलकुलेट की है। यहाँ ये एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं करता, ये चूंकि रैंडम फॉरेस्ट बनाता है, रैंडम फॉरेस्ट में चूंकि ट्रीज बनते हैं और ट्रीज में उसके पास वो इम्प्योरिटीज आ जाती है ना, यस तो you already have those numbers and the idea is to use those numbers rather than calculate accuracy again. देखो ना, उस केस में हमारे पास impurities नहीं थी ना, इसलिए हमने एक कैलकुलेशन की है खुद एक्यूरेसी की। यस सर। यहाँ पे क्योंकि वहां पे हम ट्री नहीं बना रहे थे, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट तो बहुत सारे सिनेरियोज एग्जॉस्ट कर चुका है, तो उसके पास वो सारी एवरेज इम्प्योरिटी अवेलेबल है, तो जब अवेलेबल है तो जस्ट सो देन जस्ट यूज दैट, यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। ये अगर आप पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है इधर, using a random forest we can measure the feature importance, or a feature importance, what do you mean by that? The average impurity decrease computed from all decision, ये decision tree वो कर चुका है, तो उससे इसने ये log maintain किया हुआ है एक, तो आपको सिर्फ log देखना है, और ये समझ आ गई ना, ये आपने दोबारा नहीं करना, वो random forest आप अगर ये नहीं भी करेंगे random forest में, फिर भी सेव करना है। यस अब समझ आ गई? सो इट यू कैन एक्सेस दैट, ऑल यू हैव टू डू इज टू एक्सेस दैट फीचर, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग न्यू। और मेरे ख्याल में लेट्स सी कि इसको ये कहाँ पे एक्सेस कर रहा है। तो यू आर इंपोर्टिंग द रैंडम क्लासिफायर, और ये वन वाला है, कॉलम्स हो गए एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स आप रैंडम फॉरेस्ट में देते हैं कि कितने इटरेशंस आप करें। आप कह रहे हैं उसमें ये 500 दफ़ा वो ट्रीज बनाएगा डिफरेंट हर दफ़ा, और आप फिर फिट करते हैं, और ये वो इंपॉर्टेंसेस हैं जो कि आप एक्सेस करते हैं फ्रॉम योर फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट, जो आपका फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट है जो क्लासिफायर ने दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज टू एक्सेस दिस फीचर, रिमेंबर द एंड पे अंडरस्कोर याद रखना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, नाउ यू सॉर्ट दिस एरे, और यू सॉर्ट इट डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में कि टॉप पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाए, उसके बाद अगली, इस तरह आप मार्क्स को करते हैं, और फिर आप इसमें से उनको निकालते जाएं कि जो द लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको निकालें, ठीक है। तो आपको जितने नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए वो छोड़ दें, बाकी सब निकाल, और इसमें कोई लूप नहीं है, बल्कि ये लूप है ना, ये इसने लूप दिया हुआ है कि आपको, मेरे ख्याल में अगर आपको नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए तो उस हिसाब से आप उसको इंडेक्स, तो ये बस प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है, अच्छा ये प्रिंट कर रहा है, Import ठीक है सही है। यस अच्छा हाँ, ये सब की इंपॉर्टेंस प्रिंट कर रहा है, ठीक है सही है। यस अच्छा, मेरा ख्याल था कि शायद ये एलिमिनेट भी कर रहा है, ये एलिमिनेट नहीं कर रहा है स्टेज पे, सो यू ही वांट्स टू लीव इट टू यू टू डिसाइड। अब देखिए कि ये इंपॉर्टेंस प्लॉट है, ये बेसिकली हमने रैंडम फॉरेस्ट की हार्ड वर्क को यूज किया है टू हैव अ समरी ऑफ ऑल द फीचर्स। ये कितने फीचर्स हैं, अच्छा ये 1 2 3 4 जितने भी हैं, और ये मेरे ख्याल में टॉप पे आपके पास यही 5 फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना एक थ्रेशोल्ड से, इनको आप रिमूव कर दें। देखो ना, इसमें आपको कौन सा क्या चाहिए, कुछ लूप नहीं चाहिए, कोई एक्यूरेसी कैलकुलेशन नहीं है, वी जस्ट रिमूव द लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन 5 में से जो 3 है ना, टॉप 3, ये वही 3 है जो उधर आपको मिले थे, यस ये। So this is very amazing that 2 different
entirely different approaches of feature selection give you the same result. और यहाँ से भी समझ आ गई है कि ये जो 2 है ना, ये जो 4 और 5 ये जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, हाँ, जब आपने उसको उधर उस प्लॉट में आपको नजर आ रही है वो, ठीक है ना, तो उसकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। यस ये भी वैसे ये सारी जो इश्यूज है ना कि इट्स वेरी स्ट्रेंज, आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीचर्स शुड डिक्रीज द एक्यूरेसी, ये सिर्फ डेटा कम होने की वजह से। अगर इफ यू, अब आपको समझ आ गई कि उसने शुरू में डेटा की बात क्यों की है स्टार्ट में, इधर यस कलेक्ट मोर डेटा, क्योंकि डेटा कम होने की वजह से ये चीजें हो रही है, ठीक है। So we basically covered 3 different approaches, the SBS और बल्कि वो दूसरा तो हमने कवर नहीं किया, वो तो साइकिट लर्निंग का ही है, रिकर्सिव और रैंडम फॉरेस्ट। मेनली हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस किए ना। वी डिस्कस्ड रेगुलराइजेशन एंड इन पर्टिकुलर लासो रिग्रेशन, क्योंकि you should not expect any feature selection from ridge regression, so L1 norm ही आपने यूज करना होगा। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड हमने sequential selection था, sequential backward selection SBS। तीसरा हमने किया नहीं है, वो साइकिट लर्निंग में ही है, वो आप खुद देख लें। और तीसरा हमने खुद किया है, वो जो हमने समझा है वो है रैंडम फॉरेस्ट। दिस इज अबाउट इम्पोर्टेंस, already recorded by random forest because it has all the trees. Here you have to calculate the accuracy at each stage and only remove features that have a less impact or the least impact on accuracy among all the other features, फिर आप उनको निकाल लें। और ये तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। Now the next chapter is about compressing data, and this is basically feature extraction। ये लिखा हुआ है इधर, feature extraction। इसमें आप you basically create new features, और ये इसका ताल्लुक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से इसलिए है कि आपको अगर याद हो, लीनियर अलजेब्रा में आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि sometimes you are dealing with data and if this data is given in certain coordinates। मैं इसकी एग्जांपल ये दे दूं कि लेट्स सपोज डेटा ऐसे है कि it is clustered around a line, clustered around a line। तो इस डेटा को देख के आपके जहन में क्या आता है? ये तो आप, क्योंकि सामने प्लॉट है तो इसलिए नजर आ रहा है ना, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि इट्स स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल प्लॉट होता है ना, तो वन डायमेंशनल में यू वुड एक्सपेक्ट अ सिंगल फीचर ना, 2 फीचर तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना। yes So actually what you have practically, you have a single feature representing the data, but because you are not using that feature, you are using features given to you. The features given to you are not suitable to represent that pattern। समझ आ रही है बात? yes So if you use some transformation, लेना अलजेब्रा में जॉब करते थे। अच्छा एक मिनट, जो ये नहीं समझ आ रही कि जो सिंगल फीचर है वो क्यों नहीं इज इनफ इसको रिप्रेजेंट करने? नहीं, आपको बेसिकली you have a one dimensional object yes embedded in a 2-dimensional plane, and because you are using features given to you, you have to use 2 features to represent that single dimensional object। yes हालांकि नेचुरली अगर ये नेचुरल लैंग्वेज होता तो यू शुड नीड एक्चुअली जस्ट ए सिंगल फीचर। yes ये ऐसा ही है ना, आपको सर्कल, जब आप सर्कल में जाते हैं
तो अगर आपको सर्कुलर मोशन की समझ है तो आपको सर्कुलर मोशन के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? एक, थीटा। यस लेकिन अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं तो आपको उसी मोशन के लिए फिर 2 नंबर चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। आप एज्यूम करें कि रेडियस फिक्स्ड है, तो देखो ना, आपको 2 नंबर्स इसलिए चाहिए क्योंकि आप नेचुरल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर इज नॉट द नेचुरल लैंग्वेज फॉर रोटेशन। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यू आर यूजिंग फीचर्स दैट आर नॉट नेचुरल फॉर दैट पर्टिकुलर data, and that's why, so if you use some transformation to change the coordinates from x1 x2 to some other coordinates, ये आपने अलजेब्रा में काफी दफा किया होगा, and then you change the axis, then you call it x1 prime and you call it x2 prime. अब उस नए कोऑर्डिनेट में आपको नजर आ रही है ना वो लाइन, यस so you don't need that x2 prime, you just need x1 prime. ये वो नया फीचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं. This is what we mean by feature extraction. From the available feature, you extract new features that can more effectively represent the data. This is the main idea of PCA. इसको कहते हैं principal components. So rather than being happy with the given component, you extract new components that are principal components. ये मेन एक मेथड है और ये दूसरा मेथड है LD है. ये तो खैर हम नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे. लेट्स फोकस ऑन PCA कि ये कैसे करता है. और मैं अभी से रिकैप दे देता हूं कि इसमें जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके यू विल हैव दोज न्यू फीचर्स, तो हर फीचर की जो इंपॉर्टेंस है, ये इस तरह का प्लॉट आपको हर दफा नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट लाइक फीचर इंपॉर्टेंस जो उधर थी. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर वैल्यूज. सिंगुलर, the singular values associated with each. So actually these directions, these axes, they are called singular spaces, singular spaces, yes, or singular directions. हर डायरेक्शन में एक सिंगुलर वैल्यू होगी जो कि उसके इंपॉर्टेंस को बताएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. एंड एक्चुअली दिस इज द मेन आइडिया. ठीक है, आपने इसको x1 x2 से PC1 PC2 नए वेरिएबल्स आपने, नए फीचर्स आपने वो कंस्ट्रक्ट किए, और इसमें 2 डायमेंशनल में यू विल गेट एन एलिप्स, और इस एलिप्स में ये जो है ना लेंथ ऑफ योर मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस हो जाएगा. माइनर, मेजर. तो ये जो हाफ लेंथ है ना, हाफ लेंथ, मेरे ख्याल में ये ओनली नीड हाफ ऑफ द लेंथ क्योंकि डबल ही है. दिस इज द सिंगुलर वैल्यू, इसको कहते हैं सिग्मा 1, और ये हो जाएगा सिग्मा 2. सो इफ सिग्मा 1 इज larger than sigma 2, so you can say that okay, sigma 2 is less important and sigma 1 is more important. So the length of the axis, in other words the singular value, will represent the importance of that feature. ये बात समझ आ रही है? और ये Yes. it makes sense as well कि अगर ये thin line बनती है ऐसे, तो ये हाइट जब कम होती है तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली वन डायमेंशन है, वो फीचर इंपॉर्टेंट ही नहीं है. तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना वो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. अच्छा, ये करते आप कैसे हैं? इसके लिए एज आई टोल्ड यू, यू डू नीड ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जिसको अलजेब्रा में आप टी कहते हैं, यहाँ पे आप इसको डब्ल्यू कहते हो. और यू हैव योर वेक्टर ऑफ फीचर्स एंड you multiply that vector by the transformation and you get a new feature vector. ये जो z है, z1 z2, और the rest is actually, and the trick is to find this w in such a way that you get those principal directions.
and basically you are looking for variance. So अगर आप इस algorithm को समझे ये क्या करता है, you first need to standardize, क्योंकि it's very important to standardize. वो random forest में शायद standardization की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. Then you construct the covariance matrix. तो वो जो W मैट्रिक्स की एंट्रीज है ना, उसका ताल्लुक कोवेरियंस मैट्रिक्स से होगा. गेस करें क्यों? Why should covariance matter here? क्योंकि वेरिएंस मैटर करती है. बिल्कुल. डेटा जिस डायरेक्शन में चेंज होता है वही इंपॉर्टेंट होगा ना. जब डेटा चेंज नहीं होता वो इंपॉर्टेंट में नहीं होगा. So decompose the covariance matrix into eigenvectors and eigenvalues. अब आप सोचिए कि ये eigenvector eigenvalue की बात कर रहे हैं और मैं किसकी बात कर रहा था? एक्सेस की. नहीं, मैं सिंगुलर वैल्यूज की और सिंगुलर वेक्टर की बात करता था ना. सिंगुलर. तो ये बेसिकली इसलिए है कि when you start with a given data, उस डेटा का पहले आप क्या करते हैं? कोवेरियंस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर करते हैं. तो आप एक्चुअल डेटा की बात नहीं कर रहे हैं. तो सिंगुलर वैल्यूज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स. मतलब जब आप कहते हैं कि सिंगुलर वैल्यू, ये ऐसी है ना कि जब आपके पास एक मैट्रिक्स ए होता है ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय आइगन वेक्टर्स? आइगन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इफ मल्टीप्लाइड बाय ए will give me something as if that matrix was behaving like a scalar. So this lambda is the eigenvalue of A and this V is the eigenvector of A. यहां तक बात समझ आ गई? यस. अच्छा, अब अगर मैं ये करता हूं कि A मैट्रिक्स की जगह मैं पहले A ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं, जिसको कोवेरियंस इसी तरह की कोई चीज बनती है. मेरे ख्याल में बेसिकली इसमें से आपको, चूंकि आपने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है ना, आपने स्टैंडर्डाइज में यू रिमूव द मीन, सो वो a माइनस म्यू की जरूरत ही नहीं है. जो मीन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, दिस गिव्स अस द कोवेरियंस मैट्रिक्स. कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको याद होगा इस तरह की होती है. बिकॉज वी ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज, सो दिस इज जीरो, सो a ट्रांसपोज. और a ट्रांसपोज के साथ जब हम ये हरकत करते हैं, v और लैम्डा v, तो अब ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो है, लेकिन ये a मैट्रिक्स के नहीं है. ये किसके हैं? ये वो कोवेरियंस मैट्रिक्स के हैं. तो कोवेरियंस का आइगन वैल्यू उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का सिंगुलर वैल्यू होता है. दैट्स द टर्मिनोलॉजी व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मैटलैब यूज करना है ना, तो अगर आप IEG कमांड यूज करेंगे आइगन वैल्यूज, तो आपको ये कोवेरियंस खुद करना पड़ेगा, कोवेरियंस. लेकिन अगर इफ यू वांट टू यूज SVD, तो SVD में आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ये उसका काम है. SVD खुद ये करेगा ये काम. So Ig of COV is the same as SVD. अब समझ आ गई बात? So ये सीक्वेंस याद रखें. Standardize the data, then construct the covariance matrix to look for interesting features. Basically अगर आप इस covariance को देखें ना, ये उसी इंफॉर्मेशन कंटेंट की तरफ बात जा रही है, वहां पे जिसको आप शेनन एंट्रोपी और वो चीज कर रहे हैं. यहाँ पे आप कोवेरियंस मैट्रिक्स से उस तरह की चीज ढूंढ रहे हैं, क्या वेरिएशन किधर है. ठीक है ना? And then you have an eigenvalue eigenvector decomposition and then you sort those eigenvalues by decreasing order, जिस तरह हमने रैंडम फॉरेस्ट में किया था, है? और वहां से आप सेलेक्ट करें वो eigenvectors जिनकी eigenvalues क्या हैं, लार्जेस्ट हैं, वही इंपॉर्टेंस वाइज. और उन टॉप eigenvectors से आप अपना W मैट्रिक्स बना लें फिर. ठीक, that W matrix will transform the data. अब ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ये स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए. सो एनी कोड यू सी will have these 4 steps. This is the last one is important because you have to sort it and you only pick the most important ones. And eigenvalue is the importance directly, feature importance.
यस सर। और ये मेरे ख्याल में, ये अगर आप देख लेते तो इसने यही किया हुआ है, ठीक है। इट्स गुड टू हैव एटलीस्ट सम आइडिया। ये तो खैर स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले इसने क्या किया हुआ, क्या कर दिया इसने, स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्डाइज हुई। और ये फिट ट्रांसफॉर्म आप तो करेंगे। और इसके बाद ये वो जो चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कोवेरियंस है ना, कोवेरियंस, कोवेरी एक्स जे एंड एक्स के, सो पेयर वाइज कोवेरिएशन, और ये वो सैंपल वेरिएंस, इस सैंपल कोवेरियंस, इस तरह सैंपल वेरिएंस है ना, n-1 ये सैंपल कोवेरियंस है। And because you are doing this for each pair, if you collect all these covariances, you get the covariance matrix. If you don't want to see this messy formula, you can get the same in this way as well. You have that X matrix or that mu, and ये mu की जरूरत नहीं क्योंकि आपने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है ना, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। और x माइनस म्यू ट्रांसपोज जब आप करते हैं, और इसका फिर आप इसको आप किस पे डिवाइड करते हैं, 1 माइनस n-1 पे, it should give you the same thing. Can you recall कि ये आपको यही चीज देगी, a ट्रांसपोज यही चीज देगी आपको, यस if you can recall मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और ये वो आइगन वैल्यूज है ना जो मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि यू अप्लाई दिस टू दी कोवेरियंस मैट्रिक्स। देखो ना, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स रहा आपका, सो दैट्स व्हाई ये कोवेरियंस मैट्रिक्स के तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है, लेकिन आपके ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स के सिंगल वैल्यूज हैं, ठीक है। कोवेरियंस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड सो ऑन। आइगन डिकम्पोजिशन numpy में भी है, ठीक है, इफ यू वांट टू यूज। स्टैंडर्ड जो आइगन डिकम्पोजिशन कमांड है वो मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी देता है गलती से कभी कभी न्यूमेरिकल एरर्स में। तो ये एक फंक्शन इसने बताया हुआ है कि आई के साथ अगर एच आप लगा दें हर्मिशन, तो इट विल इंश्योर दैट यू गेट रियल आइगन वैल्यूज इफ दे आर रियल। सो कभी कभी आपको पता है वो मैटलैब भी करता है कि वो प्रॉब्लम रियल होता है, ये उसके साथ वो गलती से वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे देता है। सो टोटल एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, ये इंपॉर्टेंट है कि अब हमने इस पूरे एल्गोरिथम में एक चीज डिस्कस नहीं की है कि आप इंपॉर्टेंस तो आ गई, आपके पास एक रैंकिंग आ गई फीचर्स वाइज, और लेट्स से ये आप डिसेंडिंग है कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से कितना को उठाना है? सिर्फ नंबर देख के तो आप नहीं बता सकते ना। क्वेश्चन बनता है कि नहीं? तो मतलब आप के पास वैल्यूज आ रही हैं तो उसका कोई तरीका तो होना चाहिए ना कि आप क्या, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू लूज बेसिकली। तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए दिस कॉन्सेप्ट इज नीडेड, total and explain variance. Why we are talking about variance? Because this PCA, which is basically a form of SVD, ये चूंकि it is based on covariance, तो ये variance को ही, so the singular values which we are ranking, they are representing basically some kind of variance. तो there will be total variance. total variance का मतलब ये है कि जब आप सारे features या सारे सिंगुलर वैल्यूज सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा n, बल्कि सिग्मा d यूज कर रहा है। इफ यू यूज ऑल दी सिंगुलर वैल्यूज एंड यू डू नॉट एलिमिनेट एनी, दैट इज द टोटल वेरिएंस और टोटल वेरिएशन ऑफ द डेटा। इफ यू एलिमिनेट सम ऑफ देम, लेट्स से आखिरी दो आप निकाल दें, तो जो बचेगा वो कितने वेरिएशन को एक्सप्लेन कर सकता है, कितनों को नहीं कर सकता, दैट विल बी कॉल्ड दी। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई? एक्सप्लेन वेरिएंस का मतलब ये है कि ये आप रिमूव करने के बाद जो बाकी बचते हैं सिंगुलर वैल्यूज, उस सिंगुलर वैल्यूज से रिलेटेड सिंगुलर वेक्टर्स होंगे, वो आपके नए फीचर होंगे। तो चूंकि आप सारे फीचर यूज नहीं कर रहे हैं, सो यू आर आस्किंग
कैन दोज फीचर एक्सप्लेन द वेरिएंस, मतलब टोटल वेरिएंस लेट से इतना है, ये आपका टोटल वेरिएंस है 100%, और आपने कुछ फीचर्स निकाल दिए, तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये उस टोटल वेरिएंस का ये 80% तो एक्सप्लेन कर सकता है, बाकी 20% को ये नहीं कर सकता क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है पिक्चर। इस चीज को ये क्वालिटेटिव में कंसेप्ट दे रहा हूं। हाउ डू वी, बिकॉज दीज लेमडास, मैं सिग्मा यूज कर रहा हूं बेसिकली, ये लेमडा यूज कर रहा है, बिकॉज दीज लेमडास आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये इसी से बन रहा है ना, so they will tell me Yes. the sum of all the singular values or the eigenvalues, yeah, to be with him. This will give me something related to the total variance, और इनमें से अगर मैं सिर्फ एक की बात करता हूं, एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू की, लेमडा जे की, सो लेमडा जे कैप्चर्स दिस मच ऑफ ऑल द वेरिएंस, इसको कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशो। अब समझ आ रही है बात? Yes. मतलब अगर आपके पास लेट से 10 फीचर्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये लेमडा 1 प्लस अप टू लेमडा 10 है, सो दिस समेशन रिप्रेजेंट्स ऑल दी वेरिएंस, एंड लेट से आप इनमें से तीसरा उठाते हैं, सो तीसरा कितने वेरिएंस को कैप्चर कर रहा है इस रेशो के हिसाब से। इफ दिस रेशो इज लार्ज, it is capturing a large proportion of the variance. If it is small, तो अब आपको हिंट मिल रहा है कि आप ये फैसला किस पे करेंगे। Yes. आप यहां पे तय करेंगे कि मुझे कितना वेरिएंस कैप्चर करना है टोटल। तो लेट्स से आपने 80% करना है, तो आप इतने फीचर निकालेंगे जो जिनका कंबाइंड जो वेरिएंस रेशो है वो क्या है, 20% से कम है। 80%. 20% से जिनका कम है उनको आप निकाल लेंगे, और बाकी आप उनको छोड़ेंगे जितना जिनका कंबाइंड कितना है। तो लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने आपने 10 में से अगर आपने लेमडा 3 निकाल दिया और लेमडा 8 निकाल दिया, लेट्स से आपने निकाल दिया तो आपने ये चेक करना है कि लेमडा 3 प्लस लेमडा 8 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 और सब क्या है, लेमडा 10 है। दिस रेशो मस्ट बी लेस देन व्हाट, 20. 2%, 20%, 0.2 या 20%. 20%, ठीक है। So we have actually quantified this, और ये मेरे ख्याल में PCA का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि you know what you mean by the importance। मैं हम इसने यहाँ पे इसको किया हुआ है ना, ये कम्युनिटी सम है सबका, ठीक है। ये कम्युनिटी सम इसलिए ले रहा है कि बार बार आपको ये समेशन ना करना पड़े ना, ये क्योंकि आपने उसको रैंक किया हुआ है, सो यू हैव ऑल पॉसिबल सम्स, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल यू हैव lambda 1, then you have lambda 1 plus lambda 2, then you have lambda 1 plus up to lambda 3, because you have all these, तो आप उसमें से पिक कर सकते हैं। This plot should actually explain the story which is similar to that random forest plot। क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, बताएं। y एक्सिस पे क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशो है, और एक क्यूमुलेट है, आप पिछलों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फीचर का होगा, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि रैंक्ड है। उसके बाद अगला, Yes. अगली की इंपॉर्टेंस ऐड हो गई, और देखो ना जैसे आप जाते हैं ये एडिटिव फैक्टर कम होता जाता है क्योंकि दे आर लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। तो ये टोटल वेरिएंस हो गया। Yes, sir. अब आप यहां डिसाइड करें इस प्लॉट से, सो इफ यू कैन प्लॉट दिस, यू कैन यू कैन ड्रॉ दैट लाइन कि आपको कहां पे, वो लाइन आपको कहां चाहिए, जितनी इंपॉर्टेंस आपको चाहिए आप लाइन उधर ड्रॉ करें, उसके अलावा आप सबको ड्रॉप कर दें, ठीक है। Yes. और इसके बाद ये फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे ख्याल में ये अलजबरा है,
ये बेसिकली जब आपको समझ आ गई कि मैंने कितनों को निकालना है, कितनों को छोड़ना है, आपने बेसिक वो भी तो करना है ना कि इस इन फीचर्स को आपने उन नए फीचर्स में ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो वो जो फाइनल स्टेप है वो ये है, डब्ल्यू मैट्रिक्स से बनता है। So I think we can look at this example now. ये आपके पास दो फीचर्स हैं PC1 PC2, और आपको समझ आ गई कि कितना सेपरेट कर रहे हैं डेटा को, बिकॉज दे आर रेलेवेंट फीचर। सो जस्ट टू फीचर्स आर इनफ टू distinguish between three different classes। ठीक, और सेकंड लर्न में आपने कैसे यूज करना है इसको? सेकंड लर्न में मेरे ख्याल में इसका मॉड्यूल का नाम क्या है? किधर है? इसने यूज नहीं किया हुआ। PCA, इसका नाम ही PCA क्लास। सो ये तो प्लॉटिंग है। हाँ ये है, this is important। Actually the library is decomposition, and from that decomposition you import the module PCA, yeah? And remember you also need that W matrix, transformation matrix, so you also want to initialize that transform, or that PCA will require you to give the number of components। आपको कितने components चाहिए? अच्छा, अगर आप number of components देते हैं तो then you leave that explained variance to choice, yeah? You leave it to chance। Yes। मेरे ख्याल में ये सारे पॉसिबिलिटीज देख के आपको वो प्लॉट लगाना पड़ेगा, और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से मैं कितना कर लूँ। ठीक है ना? तो शुड नॉट बी ऑटोमेटिक। और मेरे ख्याल में इसने यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दैट रेशो, ये खुद ही दे देता है आपको। PCA has implemented it as a method, explained variance ratio, so this will give you the ratio as well। तो इन रेशोस को देख के हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू लीव 2। यस सर, 2 दिया। तो अब आप जरा देख लेना कि ये पहले दो, पहला इंपॉर्टेंस कितना है? 0.37, और दूसरा कितना है? 0.1 है। हाँ नहीं, 184 समथिंग है ना। दोनों को ऐड करें कितना बनता है? अराउंड 55%। देखो ना, ये 55 अगर एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए तो आपको फिर, अच्छा इसका मजे की बात यह है कि आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नजर आ रही है ना चीजें, ये बाकी भी शो तो कर रहा है ना। Yes। आप इधर से इतने ऐड करें जितना आपको रिक्वायरमेंट मिले, तो आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ these ratios, that you, even if you choose the wrong number of components, you still get a complete picture, जिस तरह रैंडम फॉरेस्ट में था ना, क्योंकि इसने तो सारे फीचर्स को यूज किया हुआ है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को नन देते हैं तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ सॉर्ट कर लेगा इनको। इट विल नॉट रिड्यूस एनी नंबर ऑफ एनी डायमेंशंस। ठीक है, सो मे बी दैट शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट कि आप इससे कर लें, सारे देख लें, उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने कंपोनेंट्स कम करने हैं, क्योंकि दिस विल you can get this list anyway, yeah? So I hope you get some idea of PCA today। आपको कोई याद पड़ता है कि आपने यूज किया है इसको
or does it actually? Yes, well, I just मैं want to वही कहता हूँ understand कि आप लोगों को जब किसी चीज़ का ये theoretical side पता हो तो कितना फ़र्क पड़ता है, ना पता हो तो कितना फ़र्क पड़ता है, how much difference does it make when you are actually using something? सिर्फ फर्क पड़ता है। ये जब हम पहले लैब में करते हैं और बाद में जाके मैं थ्योरी देखता हूँ हाँ, तो थोड़ा ज्यादा क्लिक करता है दिमाग के अंदर कि अच्छा उसकी अच्छा ये तब मैं ये ये कर ये रहा था। ये नेचुरल मेथड है, पता है आपको? क्योंकि यस, पुराने ज़माने में ये होता था ना कि पहले आप थ्योरी पढ़ते थे फिर आप लैब करते थे। उसका नुकसान ये होता है कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते ना किसी चीज़ को। कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा बहुत यस, हाथ पाँव मारना पड़ता है ना। एंड इट ऑल्सो गिव्स मी एक्चुअली द लग्जरी ऑफ रिलेटिंग थिंग्स। अगर आपने हाथ ही नहीं लगाया किसी चीज़ को तो मैं आप क्या बोर्ड पे आप क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे? ये जो स्कूल में बच्चे जाते हैं ना मेरे, उनकी टीचर्स, उनकी जो प्रिंसिपल है वो एक दफ़ा ये बात बता रही थी कि इनका जो 5वीं तक जो स्कूल है ना, 5वीं तक वो टीचर्स के ऊपर ये पाबंदी हो रही है कि यू आर नॉट अलाउड टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू कॉन्सेप्ट इफ़ यू हैव नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बिफोर। तो पहले वो एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं और एक्टिविटी डिज़ाइन करने के बाद जब बच्चों का कोई हाथ गंदा हो जाता है किसी चीज़ में, उसके बाद वो फिर क्लास में वो जो टर्मिनोलॉजी है वो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। सो यू आर राइट इन दैट सेंस। यस। ठीक है, मेरे ख्याल में हम इसको बंद करते हैं अभी। कोई क्वेश्चन अगर है तो अभी भी हमारे पास है 1-2-3 मिनट। मेरा तो कोई अच्छा, सही समझ आ